Hello, my name is Javian Shivangi Mathur. I'm here to teach microeconomics. The topic's name is Nature and Scope of Economics. So basically, what is economics? The word economics is derived from the Greek word okios nemin, meaning household management. So basically, economics is a term which we used for management. अब वो चाहे घर का भी हो सकता है, चाहे वो किसी फर्म का भी हो सकता है, इंडिविजुअल का भी हो सकता है, इंडस्ट्री का भी और नेशन का भी. तो मैन इज अ बंडल ऑफ डिजायर्स. Goods and services satisfy these wants, but almost all the goods are scarce. And to produce goods, factors of production are needed, and these are also scarce. तो बेसिकली मैन जो है हमको बहुत सारे डिज़ायर्स हैं. हर डिज़ायर को पूरी करने के लिए हमको गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत है, जो कि हम मानते हैं कि जैसे जैसे हम यूज़ करते जा रहे हैं वैसे वैसे वो कम होती जा रही है. Economics is a study of how individuals and societies choose to use the scarce resources that nature and previous generations have provided. तो बेसिकली इकोनॉमिक्स एक स्टडी है कि कैसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरी करें, जो हमारे पास बची हुई रिसोर्सेज हैं जो हमको नेचर ने दी है, और जो हमारे जो पुराने लोग थे, प्रीवियस जनरेशन के लोग, उन्होंने हमको प्रोवाइड करा है. इट इज़ अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. वॉन्ट्स आर मोटिव for economic activity. Wants leads to efforts and which lead to satisfaction. हमारी ज़रूरतें कभी भी पूरी नहीं हो सकती हैं, हमको कभी ना कभी उनको ख़त्म करना पड़ेगा. और जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी, हमारी डिज़ायर्स बढ़ती जाएंगी, लेकिन हमारे पास हर चीज़ की कमी है, हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स हैं, जिनकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं. अब क्वेश्चन ये कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ें? वाई स्टडी इकोनॉमिक्स? अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट विल नॉट ओनली हेल्प अस लर्न इकोनॉमिक्स as an academic discipline, but would also help us understand the world and the reality that we are in. Specifically, a study of this course will help us appreciate events in economic history and understand how the present day system of economics came to be. Economics हमें ये समझाता है कि हम कैसे जो अभी तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कैसे हम देखें, और जो अभी प्रेजेंट सिस्टम में चल रहा है इकोनॉमी, उसको हम कैसे समझें. बेसिकली हम कैसे उन सब चीज़ों को मैनेज करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है. लर्न द वेज इन विच इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द एक्टिविटीज़ ऑफ मैन थ्रू इट्स टूल्स, मॉडल्स, प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स. मेक यूज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कंसेप्ट्स इन बिजनेस endeavors और सिंपली अंडरस्टैंडिंग पीपल्स इकोनॉमिक बिहेवियर. हम कैसे किसी भी इंसान को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लाइक हाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट अ पर्सन वांट्स, हाउ विल ही कंप्लीट इट वांट्स, एंड व्हाट आर हिज डिजायर्स. नाउ we come to the point where economics is divided into two parts. There are two branches of economics. One is microeconomics, the other one is macroeconomics. Microeconomics is a branch of economics which is concerned with the behavior of individual entities such as markets, firms and households. Means microeconomics is a small form of economics. एक छोटे लेवल की economics है in which we study about households, individual, firms and markets. The demand supply of individuals, of firms and markets. The other branch, which is a wider branch, is known as macroeconomics, a branch of economics which is concerned with the overall behavior and performance of the economy as a whole. In this macroeconomics, we start studying from the industry level, and we came to national and then international. What is the behavior of economy at present scenarios of the nation? How to develop economy at international level? We study all this in macroeconomics. Now, what is the scopes of microeconomics? Microeconomics studies buying decision of individual, consumer satisfaction, how a person buy a thing, what or a commodity. It depends upon his income, his desire to purchase that good, and his और उसकी कितनी उस चीज़ को खरीदने लायक उसकी पोजीशन है या नहीं है. इन सब पे डिपेंड करता है कि वो पर्सन किसी प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा.
सेकेंड इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, क्या कंज्यूमर सेटिस्फाई है जो भी वो खरीद रहा है उसके बेसिस पे, या उसको कुछ और चाहिए। बाइंग एंड सेलिंग डिसीजंस ऑफ द फर्म, तो बाइंग एंड सेलिंग डिसीजंस, किसको कौन से प्रोडक्ट को सेल किया जाए और कितने पैसों में सेल किया जाए, यानी कि इसकी प्राइस क्या रखी जाए कि वो इंडिविजुअल लेवल पे सही रहे, या मार्केट लेवल पे उसको किस तरह से बेचा जाए कि वो प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा बढ़े और उस हिसाब से कितना ज़्यादा उसको सप्लाई किया जाए। नेक्स्ट, द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस इन द मार्केट्स, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। द क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रॉफिट, कितना डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट का, उसकी कितनी क्वालिटी हमको रखनी है, कितनी क्वांटिटी रखनी है, और उस किसी एक प्रोडक्ट को कितनी ज़्यादा वेराइटीज़ में सेल करना है। लाइक अ सोप, हर तरह से एक वो सोप ही है, हम उसको एक ही यूज़ में लेंगे फॉर बेथिंग, लेकिन हर कलर का सोप अवेलेबल है, हर शेप का सोप अवेलेबल है, हर क्वांटिटी का सोप अवेलेबल है। तो ये सब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि हमको किस तरह से उसको एक ही प्रोडक्ट को किस तरह से रखें ताकि वो अट्रैक्टिव लगे लोगों को। नेक्स्ट, नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ वी स्टडी ओनली टू नेचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हियर, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। हम इकोनॉमिक्स को साइंस की तरह भी ट्रीट करते हैं बिकॉज उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है। हम पहले उसको लोगों पे अप्लाई करते हैं, फिर हम रिजल्ट देखते हैं और फिर हम उसकी थ्योरी बनाते हैं कि ये अप्लाइड है या नहीं है, प्रॉपर मार्केट्स में अप्लाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ को या नहीं कर सकते हैं। उसके साथ ही इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम थ्योरीज पढ़ते हैं और उन थ्योरीज को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लाइक थ्योरी ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, हमने उसको देखा, एक थ्योरी बनाई, सबसे पहले उसको अप्लाई करने की कोशिश करी और उसके बेसिस पे हमने और थ्योरीज बनाई लाइक मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इकोनॉमिक्स को हम साइंस की तरह भी मान सकते हैं और आर्ट्स की तरह भी मान सकते हैं। थैंक यू।